Morning, everyone. So again, we are back, and we have to even complete chapter 6. We were doing triangles, where we were talking about the similarity, basic proportionality theorem, Pythagoras theorem, and again we are going to continue the applications of Pythagoras theorem. Right. So 6.5 exercise till 11 questions we have already done, and today we are going to start with question number 12. So let me start without any delay. Your question is, two poles of height 6 and 11 meters stand on a plain ground if the distance between the feet of the poles is 12 meters. Two poles are there. One is of height 6 meter. Other one is of height 11 meter. The distance between their foot, this is the foot, distance between their feet is 12 meter. Feet के बीच में distance 12 meter. We have to find out the distance between their tops. These are the tops of the two triangles, two poles. So we have to find out this distance. ठीक है? To find out this distance, quadrilateral तो नजर आ रहा है, but हमें कुछ और करना पड़ेगा. We are joining this line over here. We are drawing a line parallel to this line. ये parallel already because standing poles are there 90-degree angles, and we have drawn this parallel to this. ठीक है? So if this 12 meter, this will be how much? 12 meter ये कितनी हो गई? बोलो बोलो बोलो, हरी अप. किसी को नहीं पता. गुड, विक्की बता दो. गुड मॉर्निंग तरनजीत, आप तो बोलोगे. We have taken the figure. The question is, there are two poles. One is of height 6 meter and another one is of height 11 meter. दोनों के feet के बीच में distance 12 meter है. We have to find out the distance between their top. हम कह रहे हैं कि इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ से एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करी. अगर ये 12 है तो ये कितनी होगी? 12 ये तो होगी. दिस विल बी 12 मीटर. ये कितनी होगी? hurry up, raise the hand. This is 6. So this will also be 6, right? Daksh, ये पूरी 11 है आपके पास. 11 में से कितनी 6 हो गई? तो ये कितनी रह गई? 11 minus 6, that is 5 मीटर. ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी 5 मीटर. और जो 11 मीटर है ये आपकी पूरी की पूरी 11 मीटर है. And from here up to here this is 5 meter. Now we have to find out the value of this. कैसे निकालोगे? Yes, लोकेश, right? नहीं बेटा, आज तो नहीं आना है स्कूल. पाइथागोरस थ्योरम से. हाँ जी बिल्कुल, पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करेंगे. पहले आप लिख लोगे इस क्वेश्चन में that CE is equal to 11 minus 6, that is equal to 5 meter, and AE is equal to BD is equal to 12 meter. आज डाउट सेशन नहीं है. बाय पाइथागोरस थ्योरम in triangle ACE, we can write AC square is equal to, AC is hypotenuse, so hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Perpendicular is CE and the base is AE. हम इस triangle के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं. This is equal to CE square plus AE square. So we have CE 5 square plus 12 square. So 5 square will be 25 and 12 square will be 144. ठीक है, बिल्कुल ठीक है दक्ष आपका आंसर. So this will be 169, that is equal to AC square. ठीक है मैम 13 आंसर. Yes मैम 13. yes बिल्कुल. और AC is equal to under the root 169, and we know that root 69 is 13 meter. So we have distance between the two tops. The top of poles is 13 meter. This was question number 12.
आपने सिर्फ पिक्चर ड्रॉ करनी है और वहां से अपने राइट मैम, ट्रायंगल आइडेंटिफाई करना है। हाँ जी, क्या कह रहे हो? आपकी वॉइस कट रही। कट रही, रिफ्रेश करती। हाँ जी, so we have just applied Pythagoras theorem to this triangle. इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस था, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड किया पाइथागोरस थ्योरम से, और जो वैल्यू आपकी आई है that is the distance between the two tops. Are you able to hear me? What I take Kali? चलिए नंबर फिर कट रही है वॉइस। now we are on question number 13. Your 13th question is D and E are the points on the side CA and CB. We are given a right triangle. अब मुझे ना इस triangle में आप ये बताना कि कितने right triangle हैं. ये आपको एक right triangle दी है. This is point C, this is A, and this is B. We have to take 2 points D and E on these sides. ठीक है, आपने क्या किया, इन सबको आपस में ज्वाइन कर दिया. ए को ई से, डी को बी से और डी को ई से. ये सारे पॉइंट्स आपस में ज्वाइंट है. ठीक है, हाउ मेनी राइट ट्राइंगल्स आर हियर? काउंट करके बता सकते हो? हम 4. हमारे पास 4 राइट ट्राइंगल्स हैं. एक तो ए बी सी, और एक है आपका ये वाला ए सी ई, दूसरा है सी डी. ठीक है, ये 3 हो गए, और एक है ये छोटे वाला सी डी. ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू शो इज ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर. आपने ये प्रूव करना है. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड ले लेते हैं, और दोनों आपको इक्वल कर देंगे. वी हैव ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर. अब ये बताओ कि ए ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है इस ट्राइंगल का, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ए ई वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है? ए सी, और बेस क्या है आपका? सीई. दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस. ठीक है, सो आपके पास ए ई स्क्वायर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर के इक्वल. राइट, नाउ वी आर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ बी डी स्क्वायर. बी डी के लिए मेरे पास आ गई ये वाली ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल. धीरे धीरे करके देखो, चार्ट CB and DC. Yes, BD square is equal to CD square plus BC square. So this is CD square plus BC square. ठीक है, हमने कर दिया. Now we are taking the right hand side. Right hand side है AB square plus DE square. अब बताओ AB square की क्या वैल्यू है और DE square की क्या वैल्यू है? मैम AD square plus BD square. नहीं, एडी कहाँ से आ गया था? राइट ट्राइंगल पे जाना पड़ेगा ना. अब तो इस ट्राइंगल में चलेगा, ये तो राइट ट्राइंगल है ही नहीं. AC square और BC मैम square. AC square और AC मैम square और BC square. Right, AC right. So we have AC square is equal to AC square plus BC square. DE square की भी वैल्यू बता दो. This is DE. मैम DC square plus EC square. Yes. प्लस This ई is स्क्वायर. CD square plus
CE स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये चेक कर लो कि क्या आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम आ चुकी है। इधर AC No, स्क्वायर ma'am. है, इधर है, ये रहा AC स्क्वायर, फिर CE स्क्वायर, ये रहा CE स्क्वायर, CD स्क्वायर, ये रहा BC स्क्वायर, ये रहा, है चारों टर्म। यस मैम। ठीक है, तो Yes, आपकी ma'am. क्या हो गई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, क्वेश्चन खत्म, which is equal to your left hand side, hence proved। मैडम हाँ जी, ठीक है, आपको ये प्रूव करना था कि ये दो टर्म्स और इन दो टर्म्स का सम इक्वल है। हमने पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू लिखी है, पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू लिखी है। ठीक है, जिस जिस ट्रायंगल के ये हमें हाइपोटेनस नजर आ रहे थे, इसी तरह से हमने राइट हैंड साइड की भी वैल्यूज लिख ली हैं, और ये सारी टर्म्स जो थी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बिल्कुल सेम आ गई, हेंस द क्वेश्चन इज डन। ठीक है, बिल्कुल ठीक लिख रहे हो दक्ष, बोलते क्यों नहीं हो। This was question number 13. Now we are coming on question number 14. 14th question is the perpendicular from A on the side BC of a triangle ABC intersects BC at D. आपके पास ये triangle है, you have this point C, this is B, A. इस ट्राइंगल में आपने ये ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बाकी और परपेंडिकुलर नहीं गिवन है, ए पॉइंट से एडी परपेंडिकुलर गिवन है, और ये कह रहे हैं कि दिस इज इन सच अ वे दैट डीबी इज इक्वल टू 3 CD, डीबी इज इक्वल टू 3 टाइम्स CD, फिर तो उल्टा हो गया, डीबी इज इक्वल टू 3 टाइम्स CD, तो मुझे ये पॉइंट्स चेंज करने पड़ेंगे। डीबी ये क्या है, 3 टाइम्स CD, मतलब जो CD है उसको अगर ट्रिपल करोगे तो DB के इक्वल है, इसको अगर आप ट्रिपल करोगे तो BD के इक्वल है। तो ये बड़ा नजर आ रहा है ना, तो आपको बड़े वाला क्या लेना है BD, और छोटे वाला CD लेना है जिसको आप ट्रिपल कर सको। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं CD को X ले लेती हूँ तो BD कितना हो गया, हाँ जी, अगर मैं CD को X ले लूं तो BD कितना हो गया। ओके दक्ष, CD अगर मेरा X है तो BD 3X हो गया। ठीक है, 3 टाइम्स है, इसका ट्रिपल है, अगर ये 10 है तो ये 30 है, ये 5 है तो ये 15 है। ठीक है, ये 2 है तो ये 2 3 6 है, सो इफ दिस इज X दिस विल बी 3X। ठीक है, अब मुझे यहाँ से ये बता दो कि अगर मैं BD को CD की टर्म्स में लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकती हूँ। BD जो है वो CD का कितना पार्ट है, या मैं 3X ना लिख, इसको सीधा 1 और 3 लिख दूं कि ये 1 है और ये 3 है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो नॉट CD BC की टर्म्स में लिख रहे हैं हम इससे, BD BC का कितना है, BC 3 लाइन पे टाइम। हाँ जी बेटा, ये देखो, इसका मतलब ये है अगर ये 3 1 है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी लाइन हमारी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 में से एक इधर की तरफ ले लिया और 3 पार्ट्स हमने इधर की तरफ ले लिए। ठीक है, इसका मतलब ये है ना कि यहाँ पे 3 पार्ट्स, 1 2 3 पार्ट्स तो ये 1 पार्ट ये है, राइट। तो अब मुझे बीडी ये का 1 क्या BD कितना है, बीडी 1/3 पार्ट, 1/3 नहीं है, BC का कितना है, BD BC का कितना है, मैन 1/4, 1/4, क्योंकि हमारी पूरी लाइन के 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए, BC के 4 पार्ट्स हो गए, और 4 पार्ट्स में से आपने BD मतलब कितने पार्ट्स ले लिए, 3, सो BD इज इक्वल टू 3/4 BC। इसी तरह से मैं CD को क्या लिखूं, CD कितना BC है, बताओ बताओ बताओ, CD इज इक्वल टू डैश BC। BC के अब भी कितने पार्ट्स हुए हुए हैं, BC के तो आपके वही पार्ट्स हैं, सेम 4 पार्ट्स हुए हुए हैं। 1/3 ठीक है, और CD में से कितना है, CD इज 1, तो CD इज इक्वल टू 1/4 BC। ठीक है, इतना समझ में आया, तो आगे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मेन आपका था ये लिखना। आपको दिया हुआ है कि ये 3 टाइम्स है, CD जो है CD का ट्रिपल ये है, इसका मतलब CD अगर 1 है तो ये 3 है। ठीक है,
और उसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 पार्ट्स हैं, हमने इसके 3 पार्ट्स कर दिए यहाँ से यहाँ तक के। 1 पार्ट आपका ये, 3 पार्ट्स ये रहे, इसका मतलब बीसी पूरी लाइन के आपके 4 पार्ट्स हैं। 4 में से बीडी कितने हैं 3 और सीडी कितना है 1। सो बीडी इज इक्वल टू 3/4 बीसी एंड सीडी इज इक्वल टू 1/4 बीसी। ठीक है, अगर इतना क्लियर हो गया तो आगे क्वेश्चन बहुत आराम से समझ में आने वाला है। उसके बाद जो आपने प्रूव करना है 2ab² इज इक्वल टू 2ac², 2ab² इज इक्वल टू 2ac² प्लस bc², bc²। देखो आपने जो प्रूव करना है उसमें आपको सारे स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं। अगर स्क्वायर्स नजर आते हैं इसका मतलब आपने लगानी होती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम हम शुरू करते हैं। शुरू कहाँ से करें, हमें ये भी नजर आ रहा है, चलो ए बी से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, ab², इसको मुझे प्रूव करना है, यहाँ तक मैं अपने आप पहुंच जाऊंगी, मैं धीरे धीरे काम शुरू करती हूँ। ab² की वैल्यू क्या लिखें, कौन से राइट ट्राइंगल में ab? दिस इज AB, कौन से राइट ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है ये, ABD का है। ठीक है, दिस इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल ABD, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, AB² इज इक्वल टू AD² प्लस BD²। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सो वी हैव AD² प्लस BD²। अब देखो मुझे जो चाहिए मैं उसके अकॉर्डिंग काम करूंगी। मुझे तो AB चलो मैंने ले लिया, मुझे AC और BC चाहिए, या सॉरी ये BD² लिखना था। मुझे तो AC और BC चाहिए, यहाँ भी AC BC नहीं आया, यहाँ भी AC BC नहीं आया, इसका मतलब मुझे इनमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। अब मैं फिर से पाइथागोरस थ्योरम बता रही हूँ AD² के ऊपर। ठीक है, इस AD² के ऊपर फिर से पाइथागोरस थ्योरम, इस ट्राइंगल में तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा चुकी, ये मैंने इसी ट्राइंगल लगाई थी। अब मैं AD² की वैल्यू निकालूंगी इस वाले ट्राइंगल से। बता सकते हो क्या वैल्यू आएगी, फ्रॉम ट्राइंगल ADC I can write AD² is equal to, बोलो बोलो बोलो, AC²। AD² is equal to, बिल्कुल ठीक लिख रहे हो, AC² माइनस CD²। ठीक है, ये तो मैंने लिखी AD² is equal to परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, सो AC² माइनस CD² प्लस BD को भी मुझे हटाना है, मुझे तो आंसर AC और BC में चाहिए। ठीक, BD को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये लिखा मैंने, BD इज इक्वल टू 3/4 BC। तो यहाँ पर BD की जगह लिख रहे हैं 3/4 BC और ये इसका स्क्वायर। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या क्या रह गया। AC² मुझे चाहिए, तो इसको तो मुझे नहीं छेड़ना है, ये तो अलाउड है मेरे आंसर में। ठीक है, इसको मैं रखूंगी, बट CD² तो कहीं नहीं नजर आ रहा, इसका मतलब मुझे CD² को चेंज करना पड़ेगा, और मेरे पास CD कहाँ है, ये रहा, जिसको मैंने लिखा है 1/4 BC। ठीक है, तो CD की जगह मैं लिख रही हूँ 1/4 BC और इसका हो गया स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और BC²। ठीक है, उसके बाद फिर से AC² एज इट इज, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 BC² प्लस 9/16 BC²। अब आप इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, ये भी BC² वाली टर्म है, ये भी BC² है, बट ये 9/16 है, ये -1/16 है। सो 9/16 माइनस 1/16 कितना हो जाएगा, 9 minus 1, 8/16 BC²। चाहे आप इसका एलसीएम ले लो, या आपको ये दोनों सेम नजर आ रहे हैं, BC² भी सेम है, तो +9 - 1 8 हो गया, +8, नीचे वाला 16 एज इट इज, BC² एज इट इज, ये हो गया कैंसिल। ठीक है, 1/2 आ गया। अब आप ले लो इसका एलसीएम, राइट, या फिर हम कह रहे हैं कि हमने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इट्स योर चॉइस, व्हाट्स हाउ यू वांट टू राइट, यू राइट। आई थिंक इट इज नॉट विजिबल टू यू, सो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करके लिखती हूँ। यहाँ से आपने एलसीएम ले लिया 2,
अब ये 2 इधर भी जाएगा, इट विल बी 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, सो यू विल गेट 2ac स्क्वायर, बट यहाँ पर तो 2 नीचे ऑलरेडी है, सो ये आपका एज इट इज bc स्क्वायर। और अगर आपने पूरे इक्वेशन का एलसीएम ले लिया तो वो वहां से हट जाता है आपका एलसीएम, सो यू विल गेट 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। क्या यही हमने प्रूव करना था? 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। ठीक है, तो जहां पर भी आपको स्क्वायर्स नजर आएंगे वहां पर आपने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, और पाइथागोरस थ्योरम को लगाकर आपने ये देखना है कि आपको जो जो आता जा रहा है उसमें से क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए उसको हटाते जाओ। किस तरह से हटाना है वो आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा कि आपका वो हटेगा कैसे। जस्ट लाइक ए बी स्क्वायर से हमने शुरू किया था, ये ए बी स्क्वायर, इनमें से आप ए बी स्क्वायर भी ले सकते थे, ए सी स्क्वायर की भी ले सकते थे, बट आप बी सी स्क्वायर से स्टार्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि ये आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, आप इसको बी सी स्क्वायर से भी सॉरी ए सी स्क्वायर से भी शुरू करोगे तो भी आप पहुंच जाओगे आंसर तक। तो मैंने इसमें ए बी स्क्वायर की वैल्यू लिखी है इस पाइथागोरस इस ट्राइंगल से, दैट दिस इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। फिर ए डी स्क्वायर तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो ए सी और बी सी चाहिए। फिर ए डी तो इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, सो आई हैव रिटन द वैल्यू ऑफ ए डी स्क्वायर फ्रॉम दिस ट्राइंगल। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर को हमने क्या लिखा है, बी डी को हमने यहाँ से पहले ही वैल्यू निकाल ली थी, दैट दिस इज 3/4 बी सी। ठीक है, मुझे बी सी चाहिए था, मेरा बी सी तो आ रहा है, सो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 स्क्वायर हो गया 16, ये बी सी का स्क्वायर। अब आ जाओ आप इधर, ए सी स्क्वायर, ये तो हमें चाहिए था, सो इसको तो छेड़ना नहीं है, अब ये तो आ रहा है हमारा, माइनस सी डी मुझे नहीं चाहिए, तो सी डी की जगह मुझे ये पुट करना पड़ेगा, सी डी इज इक्वल टू 1/4 बी सी, तो इसकी जगह पे मैंने पुट कर दिया 1/4 बी सी। इसको आपने किया है 1 स्क्वायर 1, 4 स्क्वायर 16, ठीक है, और ये हो गया बी सी स्क्वायर, और यहाँ से आपका 9/16 बी सी स्क्वायर, राइट। उसके बाद आपकी ये दोनों टर्म्स हो गई लाइट टर्म्स, बी सी स्क्वायर है नीचे 16 है, सो -1 प्लस 9 हो गया आपका 8। डू नॉट डिस्टर्ब द लास्ट स्टेप ऑफ द डिवाइडिंग, डू नॉट, ओके चलिए ये आपने कर दिया, इसको कर लिया 9 - 1 8 अपॉन 16 बी सी स्क्वायर एज इट इज, दिस इज ए सी स्क्वायर, और यहाँ हम ले क्या रहे थे ए बी स्क्वायर, तो हम पहुंच गए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बी सी। मुझे ये तीनों चीजें चाहिए थी, ये तो मेरी आ चुकी है, बट मुझे इसकी सिर्फ थोड़ी सी सेटिंग करनी रह गई है, तो इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। इसको मैं दोबारा से लिख रही हूँ अगर ये नहीं समझ में आया है। सो वी आर राइटिंग दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 1/2 बी सी स्क्वायर। ठीक है, आप पूरी इक्वेशन को देखो, मुझे चाहिए 2, ठीक है, मेरा 2 नहीं आया तो मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। जैसे ही आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2 bc स्क्वायर। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर तो 2 से 2 हो गया कैंसिल, और मेरे पास आ गया 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, और यही तो मुझे चाहिए था। अब हो गया लोकेश, हो गया क्लियर? यस मैम। ओके, कर दो इरेज। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, थोड़ा यस सा मैम। बोर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी आपने कुछ कुछ इसी तरह से सिंप्लीफाई करना है। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल एट E is a point on the side BC such that BD is equal to 1/3 BC। एक तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या हो गया? सारी साइड्स इक्वल, बिल्कुल सारी साइड्स इक्वल। नाउ वी हैव टू टेक अ पॉइंट D on BC such that BD is equal to 1/3 BC। मुझे इसके ऊपर एक पॉइंट लेना है D कि जो ये है आपका BC का 1/3 हो जाए BD। ठीक है, इसका मतलब BC लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड करनी है? 3 पार्ट्स में। उसमें से अगर हम एक पार्ट लें तो वो BD होना चाहिए। सो BD हमारी ये लाइन अगर मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ तो उसमें से एक पार्ट मेरा BD आ जाना चाहिए।
ठीक है, तो यहां से मुझे पता लगा कि मुझे डी कहां पर लेना है, ठीक है, राइट, ओके। अब यहां से इसको ज्वाइन भी कर दिया। अब आपने जो प्रूव करना है दैट इज 9AD² इज इक्वल टू 7AB²। 9AD² इज इक्वल टू 7AB²। देखो हमने कहा है कि जहां पर भी हमें स्क्वायर से नजर आएंगे ना, वहां पर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमारे पास ट्राइंगल कैसा होना चाहिए? राइट ट्राइंगल होना चाहिए ना? Yes, ma'am. हाँ जी, तो राइट ट्राइंगल होना चाहिए। हमारे पास तो 90 डिग्री एंगल ही नहीं है, तो चलो पहले 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। फ्रॉम पॉइंट ए वी विल हैव टू टेक अ परपेंडिकुलर, लेट दिस पॉइंट इज पी, ठीक है। हमने AP परपेंडिकुलर ले लिया ऑन द साइड BC। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आपको कल भी शायद बताया था, उसमें अगर आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये सामने वाली साइड को कितने पार्ट्स में ब्रेक कर देगा? 2 पार्ट्स में, और दोनों के दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये सामने वाली साइड के बिल्कुल मिड पॉइंट पे जाके कट करेगा अगर आप इक्विलेटरल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, ठीक है। अगर ये मिड पॉइंट है तो मैं BP को क्या लिख दूं BC की टर्म्स में? BP क्या है BC का? BC का कितना हो गया BP? हाफ, ठीक है दक्ष, क्योंकि आपने P मिड पॉइंट लिया है, so BP इज हाफ ऑफ BC। BP इज इक्वल टू 1/2 BC। देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था। मैंने जो मेरे पास ये पॉइंट था D, मैंने इसको भी BC की टर्म्स में लिख लिया था और इधर जो आ रहा था उसको भी BC की टर्म्स में लिख लिया था। मैं यहाँ भी यही कर रही हूँ। मेरे पास इस लाइन के बहुत सारे पार्ट्स हो गए, CP भी आपका 1/2 BC हो जाएगा। मैं हर पार्ट को अलग अलग करके लिख रही हूँ। मुझे लिखना पड़ेगा एक तो इसको BC की टर्म्स में, एक मुझे लिखना पड़ेगा इसको BC की टर्म्स में, और एक लिखना पड़ेगा इसको BC की टर्म्स में। दूसरे वाला हम नहीं ले रहे क्योंकि हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो जैसा उधर है वैसा ही इधर है, राइट। सो ये 3 चीजें मुझे BC की टर्म्स में लिखनी है। BD तो मैंने लिख दिया, दिस इज 1/3 BC। BP भी लिख लिया, ये 1/2 BC। बाकी रह गया मेरा DP। DP को कैसे लिखूं? DP की वैल्यू कैसे निकालूं? किस में से क्या माइनस करेंगे कि DP आ जाए? मैम BP को। BP में से BD को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? DP, ठीक है। तो BP में से BD को माइनस करेंगे, और BP कितना है? 1/3 BC, राइट। और BP आपका है 1/2 BC, और BD कितना है? 1/3 BC। और अगर आप इसका LCM ले लेंगे यू विल गेट 1/6 BC, ठीक है। अब मेरे पास ये वैल्यू BC की टर्म्स में आ गई, ये BC की टर्म्स में, और ये BC की टर्म्स में। चलो ये क्वेश्चन आगे तो नहीं होगा, सो वी विल डू दिस क्वेश्चन टुमारो। इसके आगे हम क्वेश्चन को कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।